अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। और नाज़रीन, बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए आपको सीधा लिए चलते हैं सालगिरह की एक बहुत खूबसूरत तकरीब में। जंगल में मंगल तेरे ही दम से, जंगल में मंगल तेरे ही दम से, सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, ओ सालगिरह का दिन आया है। सदके जावा अज ते टाई भी हो लाई जेड़ी लगदा केक चों ही कट्टी। सबसे पहले तो आपको आपकी साथी की सालगिरह पर बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। सदके जावा हुण जल्दी नाल 48 पाउंड दा केक मंगा लो। केक तो आ जाएगा, उस पे मोमबत्तियां कितनी रखनी है पहले बताएं तो सही। 48 माँ जी कितने सालों की? 48 साल की भावें तोल के वेख लो। इसका मतलब है 48 मोमबत्तियां भी मंगवाऊं साथ। हाँ, मोमबत्तियां ना मंगाना, ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਤੇ ਕੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ। ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ। नहीं तू क्यों नहीं कहना नहीं हैप्पी बर्थडे टू यू? ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਉਤਰੀ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਐ ਵੀ ਚਿੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੱਟੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੇਕ ਮੰਗਾ ਲਓ ਤੇ ਮੰਗਾਣਾ ਆਟੇ ਦਾ। ਬਸ ਬਾਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਏ ਨੀ ਕਾਦੀ ਡਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛਾਣ ਟੁੱਕਰ ਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਛਾਣ ਟੁੱਕਰ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀ ਨਾ ਹੋ, ਡਾਈਟ ਤੇ ਵੇ ਹੋ। ਛਾਣ ਟੁੱਕਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਗਲਨ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਰਚ ਕਰਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਏ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਊ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਵਡਾਓ। ਬਾਊ ਜੀ ਮੰਗਾਓ ਕੇਕ। ਮੰਗਾਓ ਨਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਟਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਾਈ। ਢਾਈ ਤੇ ਇੰਜ ਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ये कोई जगह है सालगिरह मनाने की? हमारे प्रोग्राम के सेट है। ਓਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੱਚਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਅਸੀਂ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਵਰਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਜੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਰਕਸ਼ਾ यूनियन वाले ने ਕੀਤੀ ਸੀ। रिक्शा यूनियन? वो क्यों? ਬਾਜੀ ਦੇ 2 ਰਕਸ਼ੇ ਵੀ ਨੇ। अच्छा, फिर तो अच्छी खासी आमदन होगी आपको। नहीं जुनेद साहब, मैनू लोया रास नहीं आया। ਜਦੋਂ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਲੋਇਆ ਰਾਸ ਤੇ ਨਾ ਬਲੈਤੀ ਘਿਓ ਰਾਸ। ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਕਸ਼ਾ ਉੱਡ ਗਿਆ। वो कैसे? ਬਸ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੱਕ ਗਈ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸੌਂ ਗਈ। ਖਾਬੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਉਲਟ ਗਿਆ। अच्छा, इसका मतलब है कि आप मुख्तलिफ बिजनेसेस भी करते हैं लोग। जुनैद साहब नचने हैं ते ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਲਾਂ। ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਅਸਗਰ ਬੱਟ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿੰਕੀ ਪਿੰਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਲ ਵਧਾਏ ਸਨ ਜੌਨ ਸੀਨਾ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਧੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ ਬਦਾਮਾਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੱਧਾ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੀ। वाकई? ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। जुनैद साहब ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ? ਸੁਣੋ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਬੈਠੀ। नहीं, क्या बोलता है? ਮੁਲਤਾਨ ਮੇਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਸ਼ੈਂਪੂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਧੂਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨ ਡਈਆਂ। नहीं नहीं, ऐसी कौन सी बात है, सुनाने दें, बल्कि सब सुनाए। आपकी क्या कहानी है जी? बहु ये थे अपनी स्टोरी किसी नाले पे बह के भी सुना देंगे। अच्छा, मैं तो किसी पुरफिजा मुकाम पर अपनी जिंदगी के वर्क पलटूंगी। ओए, जबरदस्त। शौक ही जी पुरफजा मुकाम ते इन्ना खर्चा जरूर करना है।
ਇਧਰੋਂ ਪੈਡਿਸਟਲ ਫੈਨ ਲਾਓ, ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਪਲਟ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੈਨ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੱਟਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਾਹੂ ਮੈਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨੀ ਸਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ओए ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਵੇਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਕ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ। ਵਾਹ। ਲੱਕੀਲੀ ਗੁਗਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਡਾਂਸ ਦਾ ਅੰਗ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਮਰ ਅਕਮਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜੇ ਡਾਂਸ 'ਚ। चलो अब तुम सुनाओ अपनी कथा। ਹਾਂ ਬਾਊ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੋਖਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬਲਦਾ ਸਿਗਰਟ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰਲੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਤਰਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਏਡਾ ਕਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੜਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾਈ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਟਿੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕੋ ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ, ਫਿਰ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। देखिए मुझे तो ये जान के खुशी हुई है कि आप लोगों ने मुख्तलिफ शोबों में काम किया हुआ है। हाँ। बल्कि माशरे की तो आज भी यही शदीद ख्वाहिश है कि आप लोग अपनी सलाहियतों के मुताबिक किसी न किसी शोबे में जरूर काम करें। ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਬਾਜੀ ਦੀ 48ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦੁਨੀਆ ਟੀਵੀ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਵੋ। तो ये अच्छा खाना पका लेती है? नहीं जी, खाना अच्छा पकाती नहीं, खाती बहुत अच्छा है। माफ कीजिएगा, ये जवाब तो फिर आपको अपने घर में मिल सकती है। ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਜੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਫਟ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਏਗੀ। ਚੁੱਟੀ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਸੇ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਖਿੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਿੰਘ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਾਪਿਆਂ ਦਾ ਖੋਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਈ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੋਤਾ ਰਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਾਜੀ ਇਹ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। नहीं अंतरियो अपने रोने रोंदियां रहोगियां या बाहू हुणां नूं केक दा भी कहोगियां? ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਮੰਗਾਓ ਕੇਕ ਜ਼ਰਾ। ये केक काटने की जगह नहीं है ना। ਓਏ ਹੋਏ ਬਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋ ਕੇਕ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋ। तो आप अपने घर पे सालगिरह की तकरीब रख लें, मैं उधर आ जाऊंगा। ਹਾਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਲ ਵਜਾਵੇ। अच्छा बाबू जी ज्यादा तोहफे ले आने की कोई जरूरत नहीं, बस 2 सूट लीलन दे ले आना। मैं इस मौसम च लीलन बड़े शौक ना पानी। तो लीलन के अब तंबू भी आना शुरू हो गए। ਲੀਲਨ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪੱਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। नहीं खलो जाओ, नहीं शौकीओ। साल दे च एक सालगिरह मनानी हुंदी है ते तुहानू टिचकरां आउणियां शुरू हो जांदियां ने। आ स्टेज दीयां कुड़ियां साल च 4-4 सालगिरह मनाउंदियां ने, उन्हां नू कोई नहीं कुछ कहंदा। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਈ। ਛੱਡੋ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸ ਬੈਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਏ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਫੜ ਲਵੀਏ ਨਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਅੱਗੇ ਧੋਤੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਈਬਰੋ ਬਣਾਉਣ ਡਈ। ਕੋਤਰੇ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਬਾਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਸ ਵੈਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਊ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਏ? ਬਾਊ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਫੇਸ 5 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖਰਾਬ ਮੁੰਡੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ।
वैसे ये अब सालगिरह मनाना इस अंदाज में बाकायदा एक बिजनेस की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। अक्सर सेलिब्रिटीज जो है सिर्फ माल बटोरने के लिए सालगिरह रख लेते हैं, हो या ना हो कोई नहीं जानता। पता ही नहीं। हाय जुनैद साहब ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਮੇਰੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਤੋਲੇ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਉਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। बारिश का कसूर नहीं है, मेरा ख्याल आपने पहनी होगी तो लोहे की बन गई। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੇਨ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਤਰਾ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ कि मेरा मुंह गोल्डन है। बहरहाल हम सबकी तो ये शदीद ख्वाहिश है कि आप लोग अपनी सलाहियतों के मुताबिक जहाँ जहाँ जिस जिस शोबे में काम करना चाहते हैं जरूर करें। हाँ। पूरे एतमाद के साथ करें, माशरा आपको रिस्पॉन्ड करेगा। हाँ जी। जुनैद साहब आप जैसे पढ़े लिखे लोग वाकई ऐसा सोचते हैं, मगर बदकिस्मती तो हमारी है ना, मुआशरा ज्यादा अनपढ़ों का है। और तेरे ऐसे ऐसा मजाक कर देने कि तुम दस नहीं सकते। तैयार श्यार होके ते फंक्शन ते जान वास्ते बाहर निकलने, अब मुंडे उतरे गली दे पानी वाला छापर भर के ते बग्गी च कड मार दे। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। एक्सपर्ट से पूछा था, पुलिस और सोशोलॉजी के एक्सपर्ट्स, वो कहते हैं कि कत्ल की वारदातों में से 5 में से 1 कत्ल की वारदात की जो वजह दुश्मनी है वो रिश्ते का ना होना। अच्छा भाईजान, इस मुआशरती मसले को हम कुछ अरसा पहले भी अपना लम्हा फ़िक्रिया का मौजू बना चुके हैं, लेकिन इतने साल गुजरने के बावजूद भी मैंने देखा ये है कि इस मामले में हमारे माशरती हवाले से रत्ती बराबर भी कोई तरक्की या तवाज़ुन देखने में नहीं आ रहा। यार मसला क्या है तुम बताओ, अभी बात कर लेते हैं। आपके साथ चलते हैं हम, आपके साथ चलेंगे। अगर आपके साथ चलने से या आपके बात करने से मसला हल हो जाए तो इस मुआशरे की बहुत बड़ी सर्विस होगी है। नहीं कर लेने, कड्डो जी डांगा कड्डो। डांगों से ये मसला हल नहीं होगा, बल्कि इस मसले के नतीजे में डांगे निकलती हैं। बात ये है कि कुछ अभी डिस्कस कर डांगों से ये चिराग नहीं बुझाया जाएगा, डांगों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। कुछ अर्सा पहले ये फैसलाबाद में एक वारदात हुई थी जिसमें दोहरे कत्ल की एक वारदात है कि मामू का भांजे के हाथों कत्ल, और वजह अनाद क्या है कि रिश्ते से इनकार। याद हमने पहले भी एक मरतबा इसी मौजू पर एक मुख्तलिफ जाविये से गुफ्तगू की थी, तो बात वहीं पे निकलती है कि हम शायद तालीमी हवाले से और मीडिया के एक्सपोजर के बाद भी हमारे बाज़ माशरती रवैयों में यकीनन बेहतरी आई है। हाँ, ये कहना कि नहीं हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे आज से 30-40 साल पहले खड़े थे, ये यकीनन गलत होगा। बाज़ मामलात में बेहतरी आई है, लेकिन बाज़ मामलात में हमने पीछे की तरफ सफ़र किया है। और आदाद शुमार भी यही बताते हैं कि रिश्ता ना होने की वजह से रिश्ता मांगा गया या रिश्ता देने की पेशकश की गई और वो नहीं कबूल की गई, इसके नतीजे में जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ हैं उनकी तादाद में पहले की निस्बत अब मज़ीद इजाफा हो गया। यानी मैंने कुछ एक्सपर्ट से पूछा था, पुलिस और सोशोलॉजी के एक्सपर्ट्स, वो कहते हैं कि कत्ल की वारदातों में से 5 में से 1 कत्ल की वारदात की जो वजह दुश्मनी है वो रिश्ते का ना होना। 5 में से 1, यानी हम माँ सिवाय 100% जहालत के इसको आप कुछ भी नहीं कह सकते। जबकि इस्लाम में और आपके मुआशरे में भी सीधी सीधी बात है कि किसी को अगर कोई नहीं पसंद रिश्ता तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, और अगर किसी को पसंद है तो उसमें भी कोई मजायका नहीं करते हो। तो वाकई तुम ठीक कह रहे हो, बहुत ही बेवकूफों वाली हरकत है, मगर हमारे मुआशरे में अभी तक मौजूद है। हाँ। खानदानी दुश्मनियों की जो सबसे बड़ी वजह है हमारे माशरे में वो वरासती जायदाद की तकसीम है, और दूसरे नंबर पे यही है रिश्तों का ना होना, रिश्ते से इनकार। मतलब हम गुफ्तगू भी करते हैं, हम अखबार में खबरें भी अब पढ़ते हैं, मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गए हुए हैं, हम अब पढ़ते रहते हैं, मीडिया में सुनते हैं, खबरें सुनते हैं, फिर हम सबसे ज़्यादा ये कि ड्रामाज देखते हैं। अब ड्रामा में भी हम देखते हैं, लेकिन हम कोई नसीहत नहीं पकड़ते उससे। छोटी छोटी बातें हैं जो देखने के, मतलब
अब जो नई जो हकीकतें हैं उन पे हमें नज़र रखनी चाहिए। अब माशरा वो माशरा नहीं है जो 40 साल पहले वाला था। 40 साल पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था, ख़ानदान का एक बुजुर्ग कह दिया करता था कि फ़लाँ की फ़लाँ के साथ शादी होनी है और सारे कह देते थे जी बिल्कुल ठीक, ऐसे ही होना है। अब बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई हैं हमारे माशरे में, एजुकेशन की वजह से आ गई हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, बाज़ जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। ये सारी तब्दीलियाँ आज से 30-40 साल पहले महसूस नहीं होती थी। मतलब खानदान का एक बुजुर्ग है, वो जब यानी मैंने कहा कि वो पहले कह देता था, अब खानदान के बुजुर्ग पे ही सबसे ज्यादा प्रेशर आता है कि जी आप करवाएं। और जब खानदान का बुजुर्ग बेचारा कोई कह देता है और उसके जवाब में उसको इनकार सुनना पड़ता है तो कशीदगी मजीद बढ़ जाती है। यही सबसे बड़ा अलमिया है हमारा। दादाजी ने क्यों ना की थी, चलो सानू कर लेंगे भाई, तुम दादा आगे ही ना कर दे। ये पॉइंट, ये मसला दादा पता आगे क्या? ही ना करदा। मैं आपको इसका टेक्निकल छोटी सी एक बात बताऊं, ये है झूठी अना। अना क्या होती है? अना हर आदमी के अंदर होनी चाहिए और हर खुददार आदमी के अंदर होती है। हाँ जी। झूठी अना किसे कहते हैं? झूठी अना वो होती है जो एक कानून के मुताबिक एक बात जो है वो नहीं हो रही या हो रही है, उसके ऊपर आप अपनी अना पैदा कर ले, वो झूठी है। भाई कानून अगर जो कह रहा है वो नहीं तुम मान रहे तो फिर अना किस बात? बिल्कुल। देखें कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अब यकसर तब्दील हो चुके हैं। ये थोड़ी बहुत तब्दीली नहीं आई, यकसर तब्दील हो चुके हैं। सबसे बड़ी जो तब्दीली आई है आज से 30-40 साल पहले, और तरह का जो मैं माशरा कहता हूँ, अब पहले कजन्स की जो एजेस थी, जो उम्रें थी, उनमें इतना फर्क नहीं हुआ करता था। अब जो बहन भाइयों की शादियां हैं वो भी बहुत फर्क के साथ होती हैं, तो लामाला फिर आगे से उनकी जो औलादों की उम्रों में फर्क है वो भी अब ज्यादा होने लग गया है। अच्छा, फिर पहले ये होता था कि एक जॉइंट फैमिली का कोई बिजनेस हुआ करता था, जॉइंट यानी एक बिजनेस होता था, दादा अबू का था, वही सारे भाई मिलकर संभाला करते थे, तो आपकी उस हवाले से भी ऊंच नीच माली हैसियत में भी ज्यादा नहीं होती थी। अब जो जो वक्त गुजरता जा रहा है तू उसकी हैसियत में ज्यादा फर्क आता जा रहा है। यानी कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई फारग रहता है। इससे पहले आज से 30-40 साल पहले इतना ज्यादा फर्क नहीं हुआ करता था जितना अब है। फिर तालीम में फर्क बहुत ज्यादा हो गया। कई लोग तालीम हासिल कर लेते हैं, कई लोग तालीम हासिल करके भी अनपढ़ रहते हैं। और जाहिर है कि उनमें वो दोनों में यानी अगर उनकी पसंद पूछी जाए तो या लड़की की तरफ से इनकार हो जाता है या लड़के की तरफ से इनकार हो जाता है। वो फर्क जो है वो बहुत ज्यादा हो गया हुआ। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले बात बन जाया करती थी। अब बात यह कि इसमें ये जो वाकयात हैं या ये जो कशीदगी फैमिली में पैदा हो जाती है, इसमें कमी कैसे लाई जा सकती है? बात यह कि थोड़ा सा टेक्निकल अंदाज में इसको देखा जाना चाहिए। यकीनन जब भाई बहन से, बहन भाई से रिश्ता मांगती है और इनकार के बाद थोड़ा सा इंसान को झटका जरूर लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन जरा दिल खोल के सोचें, उसके जूते में अपना पांव रख के सोचें कि अगर उसकी जगह आप होते तो आप हाँ कर देते। आप भी बहुत सारे कंसिडरेशंस आप जहन में रखते कि नहीं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एक तो ये कि रिश्ता खुल के मांगने से पहली स्टेज ये है कि आप बहन भाइयों के जरिए या अगर खानदान का जो बुजुर्ग है, अगर वो दाना बुजुर्ग है तो फिर उसके जरिए उसके कान में ये बात डाल दें। और फिर अगर उस आपको शुरू में ही बहुत नरम से अंदाज में हौसला अफजा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वहीं से ही आप उसको इनकार समझ लें। इनकार समझ लें, बजाय ये कि आप इंसिस्ट करें, इसरार करें, नहीं जी मैंने जरूर करनी है मेरी जिंदगी, और इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी करें। उससे बेहतर है कि आप उस हकीकत को तस्लीम करने को नहीं करना चाह रहे हैं। कोई वजह होगी जो वो आपसे बेहतर जानते हैं, सीधी बात है। हाँ जी, माँ बाप उनके जो है उनको भी अपने दिल ठंडा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मौका मिलना चाहिए सोचने का। और वैसे भी सीधी सीधी बात है, इस्लाम में ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो फरमा दिया है कि रजामंदी बड़ी जरूरी है। अगर कोई रजामंदी नहीं है और फिर भी आप धौंस कर रहे हैं तो इसका मतलब है नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की नाफरमानी। अच्छा, एक और बात जो मैं बुजुर्ग का रोल कह रहा हूँ ना, एक दाना बुजुर्ग का रोल ये होता है कि अगर आपके बेटे या बेटी आपके ज़हन में कोई है रिश्ता तो वो धीरे से आप उस बुजुर्ग के कान में डाल दें, ताकि जब कोई दूसरा बहन या भाई उस रिश्ते के हवाले से जिक्र करने लगे तो वो बुजुर्ग जो है वो वहीं पे ब्रेक लगवा दे उनकी कि नहीं उनका कहीं और है इरादा है, तो इस बात को आगे ना बढ़ाओ। तो जब आपके पास कोई रिश्ता आता है तो उस बुजुर्ग को जरूर बता दें।
लेकिन बुजुर्ग को भी एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, वो फौरी तौर पे खानदान में नशर नहीं कर देना चाहिए उसको। नहीं जी, बुजुर्ग का बड़ा असर होता है। हमारे ताए के मोहल्ले में एक लड़के का इसी तरह शादी से उन्होंने इनकार कर दिया। तो मोहल्ले के जो के ताया जी बुजुर्ग थे, उन्होंने आके हमारे ताए से कहा कि कगे हो तुसी बुजुर्ग हो। ताया फिर गया है, फिर चूंकि बुजुर्ग था उसका बड़ा असर था बात में। ताए ने फिर जाकर उधर बात की। अल्लाह का शुक्र है वही लड़की अब हमारी ताई है। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣਨ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। बस लो जा यार, एक मिनट भुख बढ़ाने लग पैंदी हद हो गई है तेरे वाली भी। तेरे ढिड ते डांगा ना मारनी है पैर के। यार भाज ने यार एक दोस्त की तरफ मैं गया, उसका घर उसने माशाल्लाह बनाया, अल्लाह ताला उसको हंडाना नसीब करे। बड़ा प्यारा घर बनाया उसने, और मैं वो एल्यूमिनियम की खिड़कियां शिड़कियां और अटैच बाथ और ये वो देख के सोच रहा था कि आज यादें माजी डिस्कस किया जाए कि हमारे वो पुराने घर जिनमें हम पल के बड़े हुए वो कैसे प्यारे होते थे और खुले डुले होते थे, और उनमें सादगी कैसी होती थी। ये भी प्यारे ही है, मगर वो एक अजीब सा दौर था। अब उसको देखते हैं या याद करते हैं तो बड़ा मजा आता है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जिनका साथ आपको जिंदगी गुजारने में बड़ा फायदा मिलता था। मसलन मैं याद कर रहा था कि अब तो किसी घर में रोशनदान ही नहीं होता। उस वक्त दीवारें मोटी होती थी, कम से कम को 13 इंच चौड़ी दीवार होती थी, जिसकी वजह से घर के अंदर गर्मी या सर्दी जो है उसमें मौसम का इतनी जल्दी असर नहीं था होता। सही। और उसमें ऊपर नीचे खिड़कियां होती थी और ऊपर रोशनदान होते थे। उन वक्तों में जाहिर है छतें ऊंची होती थी तो आपको रोशनदान रखना पड़ता था। अब 8-8, 10-10 फुट तो ऊंची छतें हैं। हाँ जी, 16-16 फुट 18-18 फुट ऊंची छतें होती थी। और उन छतों का भी ये फायदा होता था कि कमरे ठंडे रहते थे। और वो छतें जो है वो लकड़ी के जो है ना जी, वो शतीर वो डाले होते थे, और उसके ऊपर बाले लकड़ी के, काने भी। हाँ जी, कानियों वाली छत भी, उसके ऊपर कानियों वाली चेख लटा के ऊपर मिट्टी डाल के बड़ी ठंडी छत होती थी। और साथ जो चूंकि छत बड़ी ऊंची होती थी, इसलिए जो पंखा लटका होता था छत के साथ, उसका राड कम ही कम को 10 फुट होता था। अच्छा, ऊंची छतों का बेचारी छिपकली को बहुत नुकसान होता था। अगर आप उसको छी करते थे तो उसके पास जाते जाते उसके पास वो जूती का निशाना बन जाती थी। ये छिपकली स्पेशलिस्ट जी आपका एक्सपीरियंस है माशाल्लाह काफी। ये छिपकली नहीं खत्म हुई उन छतों में भी, लैंटर वाली छतों में भी ये नहीं खत्म हुई। ये इंसान के साथ साथ ही जिंदगी गुजार रही। हाँ जी, ये कहती है कि चल जी तू पक्के मकान च रहना तो फिर मैं भी गुजारा कर लूंगा। ला जी, छतें बहुत ऊंची होती थी, वो रोशनदान होते थे, और रोशनदान के सेंटर में एक राड होता था लगा हुआ, जिसके ऊपर वो पट उसका चलता था। और अक्सर उस रोशनदान में चिड़ियां घोंसला बना लेती, मगर जब चिड़ी घोंसला बना लेती थी तो फिर रोशनदान को कोई छेड़ता नहीं। अच्छा, अक्सर वो जो रोशनदान होते थे उनमें डोरी भी लटक रही होती है ऊपर बंद करने के लिए, खोलने के लिए। इस तरह के मयारे अब रेलवे स्टेशन जो है, इनके वो जो वेटिंग रूम होते हैं वहां पे अभी कुछ ना कुछ नजर आते हैं, वरना तो वो बहुत कम अब हो गया हुआ है वो वाला मंजर देखना। अच्छा, जो नीचे खिड़कियां होती थी वो भी लकड़ी की होती थी, और अक्सर बारिशों के दिनों में वो पट फूल जाते थे, या वो बंद नहीं थे होते या खुलते नहीं थे, और उनमें भी सीखें सीधा लोहे के सरिये की। बारों बच्चा कह रहा है चाचा कितने साल रह गए। बड़े मैये की वो खिड़कियां, हाय उन खिड़कियों के आगे फिर दीवार में किल ठोक के तो पतले से पर्दे लटकाए होते जी, बिल्कुल बहुत प्यारा। और अक्सर जो फर्श थे ना जी, ये तो अब टाइलें शाइलें पत्थर शत्थर निकले हैं ना, ये ज्यादा से ज्यादा अव्वल तो चंगे पले घरों में भी ईंटों के ही
और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सीमेंट का हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस सीमेंट में सुर्ख रंग डाल के ना तो उसको कर दिया जाता था, वो थोड़ा सा डिजाइन बना दिया। फिर उसमें फर्श के सेंटर में एक फूल बनाया जाता था, वो फूल कागज का काट के तो वो मिस्त्री लाते थे, फिर उसको बिछा के उसके ऊपर ऐसे सारा सीमेंट डाल के उस कागज को उठा लेते थे तो वो नीचे फूल बड़ा प्यारा फूल वो बनता था। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खैर टाइल भी आ गई और पत्थर भी आ गया और सारा कुछ हो। टाइल पत्थर भी बाद में आया जीजी, पहले चिप्स आई थी। हाँ चिप्स आई, हाँ जी, वो छोटे छोटे पत्थर दाना था, वो सीमेंट में मिला के तो ऐसे उसको फर्श में कस देते थे और फिर उसके ऊपर मशीन चला के, मशीनें भी बाद में ही, पहले हाथ की बट्टियों यार से। चिप्स भी बाद में है, चिप्स से पहले आलू आए थे। सिलसिला इन्हें पता है, कोई किसी ने कुछ कहना नहीं, वरना उठ के बंदा दे थे आलू पा दे ना एक। अच्छा एक मिनट मैंने गलत बात की, हफ्ते दे प्रोग्राम में ठीक कर। मैंने गलत बात की। नहीं, आलू तो पहले आया चिप्स से। आलू आए थे तो चिप्स बनी ना जी। जीजी ये लड़ने वाली बात नहीं, आलू पहले यार आया। आलूओं वाली चिप्स की बात नहीं हो रही मेरे, आप खुदाया वो पत्थर वाली चिप्स की बात हो रही है। सॉरी हद हो गई है वैसे तुम्हारे वाले भी। ताई तुमने कामरान खान सावली लगाई हुई है। क्या है यार, वो भी चिप्स है, वो वजाहत करो ना, मुझे क्या पता। गुफ्तगू तुम्हारी बिरजू वाली है। बिल्कुल बोलते जा रहे ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣਨ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। बस लो जा यार, एक मिनट भुख बढ़ाने लग पैंदी। हद हो गई है तेरे वाली भी, तेरे ढिड ते डांगा ना मार दी है पैर के। लो जनाब, एक और मैये की चीज आपको याद कराने लगा हूं कि अक्सर छोटे घरों में बावर्ची खाना जो है ना वो सीढ़ियों के नीचे होता है। हाँ जी, वो सीढ़ियों के नीचे ही दीवार पे केल शेल भी लगे होते थे, उधर चीजें भी टंगी होती थी, चूल्हा भी नीचे ही बना होता था। अक्सर बिल्कुल घरों में जो छोटे घर होते थे जरा सादे, उनमें उधर होता था बावर्ची खाना। एक कोई बाथरूम होता था सेन की नुक्कर में, अब तो अटैच बाथ हो गया। एक कोई बाथरूम नुक्कर में, रात को कहीं वक्त अगर कोई बच्चा बाथरूम में जाना चाहता था तो उसे वेड़े से डर लगता था। वो बेचारा फिर अम्मी ने जिगाता जी मैं बाथरूम च जाना है, तो अम्मा कह रही होती थी जा टुर जा, मैं की करा, आप बड़े हो गए हो, जाओ। मुझे नहीं पता, मेरे साथ चले। बाहर जेन में नेरे में मुझे हचकोला नजर आता। अच्छा, जो बाहर वाला दरवाजा होता था, मेन दरवाजा, वो भी लकड़ का 2 पाट वाला होता था, उस पे डिजाइन भी बना होता था, और उसकी कुंडी मुझे आज तक याद है, वो संगली सी होती थी। वो ऐसे संगली सी कुंडी लगा के उसमें ताला भी लगाते थे, और अक्सर आम रूटीन में उसमें चमचा फंसा देते। हाँ जी, पहले जाके कुंडी जो चमचा कटना, फिर बुआ खोलना तो मेहमान ने चमचा हाथ च वेख के कहना ओहो मैंने आपको खाना खाते हुए डिस्टर्ब कर दिया। फिर उन्होंने दसना भाई जी खाने वाला चमचा नहीं, ये ताले वाला चमचा है। हाँ जीजी, वो कुंडा अंदर की साइड पे दरमियान में होता था दरवाजे पे, और बाहर की साइड पे ऊपर होता था। हाँ, या सबसे ऊपर या सबसे नीचे नीचे भी चेन वाला कुंडा होता था आमतौर पर। हाँ जी, वो संगली सी बनी हुई। अब ये ना कह देना दरवाजे को संगली लगी होती थी तो दरवाजा भौंकता भी था। इसका पता कोई नहीं ना, देखो ना ये फर्श वाली चिप्स आलू वाली बना दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। बताएं पाकिस्तान का कौमी मशरूब क्या है? सर सत्तू नहीं, शक्कर कोला जी नहीं सर, हमारा कौमी मशरूब वो है जिससे तड़ सारी कौम को हाइपेटाइटिस हो रहा है। कौन सा? और गंदा पानी। अच्छा, कहाँ थे यार तुम सब लोग, इतने अरसे से गायब ही थे? सर, हमने किसी को बताया था कि हमें बात की समझ नहीं आती क्लास में जी, तो फिर उसने हमें बताया कि भाई जी आपका दिमाग ही हाजिर नहीं होता क्लास में, आप में टेक्निकल फॉल्ट है। फिर हम एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दाखिल हो गए थे जी। उन्होंने भी फिर इतनी देर के बाद जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी आपकी मरम्मत हमसे नहीं हो सकती, दफा हो जाइए। सर मैं फिलासफर बनना चाहता हूँ सर। पहले बंदे दा पुत्र ते मान। तुम्हारा टेक्निकल फॉल्ट मैं ही दूर करूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। सर इंशाल्लाह आइंदा छुट्टी नहीं होगी जी।
अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे जी, हर मुल्क के कुछ कौमी निशान होते हैं जी जैसे उस मुल्क का कौमी तराना, उस मुल्क का कौमी शख्सियत, उस मुल्क का कौमी खेल, उस मुल्क का कौमी जानवर। तो आज हम वतन अजीज के ये जो कौमी निशान है, नेशनल सिंबल्स हैं, ये डिस्कस सर करेंगे। हम मेरे एक कजन के तो कमर के ऊपर चांद ग्रहण का भी निशान था। मैं कौमी निशान की बात कर रहा हूँ। ओके सर। सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? चील। वो कैसे यार? सर जी देखिए ना, चील गोश्त बेचने वाले कितने घूम रहे हैं, कितने फिर रहे हैं। इसका मतलब है कि चील की बड़ी अहमियत है, तो हमारा कौमी निशान चील है। नहीं सर, कां सर कां कमा कैसे यार? सर कां की बड़ी अहमियत है सर, उस पे तो गाने भी बने हुए हैं। उड़ कोठे उत्तो कावा वे। सर अब सर मेरा ख्याल है हमारा कौमी परिंदा जो है वो तोता है। वो कैसे? सर हर दूजे घर दा बूआ खोल के वेख लवो, उत्थे तोता जरूर होएगा। और कम से कम तुहाडा बूआ ते खोल के जरूर देखना चाहिए। जिन्ने तुहाडे कोल तोते ने, कौमी परिंदा साडा तोता ही होना। जी सर। सर जी हमारा कौमी परिंदा है चरगा। यानी जिस परिंदे का भी चरगा बन जाए ना जी, उसे कौमी परिंदा समझता है। सर इस स्टूडेंट की सोच पेट से आगे है। सर जी हमारा कौमी परिंदा चिड़िया है। पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है। चकोर। ओ कहता रहा हूं ना आप लोगों को असेंबली में भी कि हमारा कौमी परिंदा चकोर है। सर ये चकोर जो है, ये चकोर होता है। इंतहाई खूबसूरत परिंदा है चकोर यार। ये इस वक्त तुम्हें स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। सर मैं तो स्क्रीन के अंदर बैठा हूँ, मुझे नहीं नजर आ रहा। चलो सुबह 9 बजे देख लेना। ओके सर, यानी 9 बजे तक करते ऐसी नलायक ही रहे। अच्छा जी, अगला सवाल ये है, पाकिस्तान का कौमी फल क्या है? जो आप अफोर्ड करते हैं। क्योंकि सर फल इतना महंगा है कि कौमी फल तो वही होगा जो बंदा अफोर्ड कर सके। लो फिर इस हिसाब से तो हमारा कौमी फल बेर हुआ। सर हम बचपन में हमसायों की दीवार पे चढ़ के बड़े कौमी फल तोड़ा करते। ओ जाहलो, हमारा कौमी फल लसूड़ा है। वो कैसे? सर वाहिद एक फल है लसूड़ा जो हर घर में पाया जाता है, बेशक अचार में हो। ओफो सर जी, ये तो सारे पढ़े लिखे जाहिल लग रहे हैं मुझे। हमारा कौमी फल है शतूत। वैसे इरम तुमने तो हाथ ही कर दी है। ये छाबड़ी वाले क्या गली में हमारे कौमी फल की आवाज लगा रहे होते हैं। एक कौमी फल जलेबा ठंडा ठा रहे। सर जी जितने जितने हर घर में बच्चे हैं ना जी, हमारा कौमी फल है दुआना। एक दुआना ले आओ तो सारे बच्चे रज जाते हैं। मैंने कहा शायद कहने लगा जितने जितने हमारे हर घर में बच्चे हैं ना जी, हमारा कौमी फल है अब्बा। पाकिस्तान का कौमी फल है आम। और आम पाकिस्तान का ऐसा कौमी निशान है, बल्कि कहना चाहिए वाहिद कौमी निशान है जिस पर पाकिस्तान की हुक्मरानी भी है। सर वजाहत कर दे ये कौमी फल हमारा चौसा है या लंगड़ा है? सारे आम यार। सर जी मुझे पता था, मैं भूल गया था। अच्छा जी, आप बताएं पाकिस्तान का कौमी मशरूब क्या है? सर सत्तू। नहीं। शक्कर कोला जी। नहीं। सर हमारा कौमी मशरूब वो है जिससे तड़ सारी कौम को हाइपेटाइटिस हो रहा है। कौन सा? और गंदा पानी। नहीं, गंदा पानी तो नहीं है, लेकिन ये जो हेपेटाइटिस वाली बात है, ये किसी हद तक ठीक है कि हम अपना कौमी मशरूब पी के बड़ी तादाद में हेपेटाइटिस के मरीज बन रहे हैं। और हमारा कौमी मशरूब है गन्ने का रस, यानी रो। जिथे रो राजी रो। अच्छा सर, कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि कौमी मशरूब में अगर अदरक और नींबू भी डाल लिया जाए तो फिर वह ज्यादा अच्छा कौमी मशरूब होता है। यार मैं हिकमत नहीं सिखा रहा, कौमी निशानात बता रहा हूँ। कौमी मशरूब हमारा है रो। गन्ने का रस भी उसे आप कह सकते हैं। अच्छा जी, कौमी फूल। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। आप बताएं जी। गोभी का फूल सर। जी सर जी जे विच छोटा गोश्त पाया हुआ है। सर मैंने आपको बताया ना, इस स्टूडेंट का दिमाग पेट में है। अच्छा तुम बताओ भाई। बताओ यार, वो पूछ आपसे पूछ रहे हैं। बताओ कौमी फूल कौन सा है? उनको पता है कि इसको तो पता ही है, वो आप लोगों से पूछते हैं। बताओ ना कौमी मैं फूल। बताऊं सर? हाँ जी। सर हमारा कौमी फूल वो है जो वैलेंटाइन डे पे आपको कोई लड़की पे
खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान का कौमी फूल है गुले यास्मीन, जैस्मीन। देखा, मैंने सर इनको बताया था कि हमारा कौमी फूल जो है ये फिल्म स्टार यास्मीन है। नाज़रीन, ये सब कुछ था हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।